Okay, good morning, good afternoon. Sorry, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. I think I am audible to you all. Anna, Good afternoon, sir. Yes, sir. good afternoon. So, in the previous class, we have discussed a numerical question. Again, we are going to discuss this question. Okay, because that time, due to the less time of the class, the meeting was ended. So, again, we are going to discuss this. The question was, that was the question. Okay. So, here I have told you about something. Okay, so now again we are going to discuss this. The question is clear. I think you all, the internal and external diameter of the impeller has been given. Okay, and the capital N is equal to 1200 RPM is given. Again, the vane angle at inlet theta is given 20 degree, and vane angle at outlet is given phi is equal to 30 degree. And I think, the water enters the impeller radially and velocity of flow is constant. Velocity of flow at inlet and velocity of flow at outlet will be same. Okay. So here we know that due to the radial entering of the water, so alpha will be 90 degree and VW1 is equal to 0. That type of thing we have talked. Okay. So that was the thing we have discussed earlier. So follow these steps and try to solve this. And if any problem occurs, please ask me. Right, take your copy and pen and please solve this question. Okay, we have the question already here. इसका velocity triangle बता दीजिए ना. Okay, so I'm going to draw the velocity triangle. Let me try to draw this because I think I should use the whiteboard. क्या नहीं, इससे देखते कर. Okay, so triangle will be more made like this. Again, I'm going to take this. I'm trying to draw this. Okay, basically perpendicular. Okay, यहाँ तक ऐसे रहेगा. So here हाउ टू नहीं, मैं उससे करता हूँ. ठीक है, जूम का जो व्हाइट बोर्ड है उससे इजी पड़ेगा मेरे को. मैं वहां से कुछ लिख भी सकता हूँ इसीलिए. देखो इस तरह से बनेगा ये ट्रायंगल. ओके, ये रहेगा आपका 90 डिग्री पे हम लोग का जाएगा V1. ओके, and this will be U and this will be your VR1. Relative velocity will be there. So here V1 is equal to VF1 because the water enters radially at VF1. I think it is clear to you. This angle will be theta. Okay. So let this is the backward curve length. This is the backward curve length. Okay. So again, triangle will be at outlet will be like this. This will be your V2. Okay. And this will make beta angle. This is your U2. Okay. And this will be your VF2. And this is your 5. And this portion, this half portion will be VF2. Sorry, VW2. So this is the inlet. This is the inlet. Okay. So water enters
at 90 degree radially. So this is will be V1, and V1 has the two components. First one is U1, second one is VF1. And velocity of flow will be always perpendicular to the motion of fluid. That's why here V1 आपके V2 VF1 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी काम करेगा VR1 V1 का. ठीक है, फिर यहाँ से ये V2 से निकल जाएगा पानी. तो V2 का दो कंपोनेंट होगा, पहला U2 सॉरी VW2 हियर, यहाँ पे VW1 0 रहेगा. V2 का दो कंपोनेंट VW2 एंड VF2. ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका U2 हो जाएगा और इसका रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा VR2. इस तरह से ट्रायंगल बनेगा. ठीक है, एनी क्वेश्चन? So now let's solve this. So we have, let me take the keyboard. T1 given as, I have the question ready, 200 mm. Okay. And again, we have D2 as 400 mm. Okay. Then capital N is equal to 1200 RPM. Theta is equal to 20 degree. Phi is equal to 30 degree. Vane angle, okay, alpha is equal to 90 degree. Then VW1 will be 0. And again VF1 is equal to VF2. So that was the thing. So we have to calculate the work done by the impeller per unit weight of water. That means work done by impeller per unit weight of water. ये निकालना हम लोग को. इसका फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, VW2 U2 by G, ये फॉर्मूला है. तो हम लोग को पहले तो U2 निकालना पड़ेगा. तो U2 निकालने के पहले हम लोग U1 भी निकाल ही लेते हैं, है ना? 12.56 U1. Okay, let me solve this. Okay. U1 is equal to, the formula was pi. So let hash is the pi. Okay, let hashtag is the pi. Pi d1 n by 60. So put the all values here. 3.14 multiply d1 is 0.2 meter, that means 200 mm, multiply 1200 RPM by 60. So the value will be what? Tell me again. 12.56 meter per second. 12.56 meter per second. Okay. Again, calculate the U2. 25.13 meter per second. Okay, the similar process will be followed. Okay, 25.13 meter per second. So here U2 will be pi d2 n by 60. Okay, so we have the U1 and U2. Okay, but we have not the value VW2. Okay, so how we will calculate this VW2? So we will go to the that triangle, this triangle. So here is the VW2, this portion. So here we can write, wait,
So this is the VW2 na. This is the VW2. Okay. So this will be written as U2 minus VW2. You can write this now. This will be U2 minus VW2. So we will take the here tan phi because this is the 90 degree ना VF2 वाला. tan phi क्या हो जाएगा? So tan phi is equal to, we can write, I think VF2 होगा, हाँ VF2 under bracket VF2 by under bracket U2 minus VW2, U2 minus VW2. So with the help of this equation, we can solve the question again. Tan phi is 30 degree. Tan 30 is equal to, so we have the VF2 again. VF1 is equal to VF2 and V1, but we have not the V1. Okay, so let this here. Okay, VF2 by, we have the U2 25.13 minus, and we have the VW2. I think we have not the VW2 again. तो VW2 VF1 से निकालेंगे, मतलब VF2 VF1 से निकालेंगे. Okay, wait here. 4.57 आया. So we have to calculate here VW2 first. Okay, so let's VF1 inlet triangle here. Okay, so here if we calculate the VF1, then we can put the VF1 is equal to VF2, then we can calculate the VW2. Okay, so in that triangle, tan theta will be at inlet triangle. Tan theta means 20 degree. 20 will be VF1 by U1. VF1 by U1. Okay, again we can write this VF1 by, put the value of U1 12.56, then calculate the value of VF1. कितना आएगा बताओ? 4.57 मीटर पर सेकंड. 4.57. You are so quick. मीटर पर सेकंड. ये आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं, VF1 इज इक्वल टू VF2 होता है. ये भी वैल्यू वही हो जाएगा 4.57 मीटर पर सेकेंड. अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ बैठा देंगे tan phi वाले वैल्यू. ठीक है, tan phi का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30. tan 30 इज इक्वल टू VF1 इज इक्वल टू VF2 है, तो 4.57 बाई अंडर ब्रैकेट 25.13 माइनस VW2. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, VW2 निकालेंगे. अब बताइए VW2 कितना आएगा? 17.21 मीटर पर सेकंड. 17.21 मीटर पर सेकंड. ओके, वेरी गुड. अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग को वर्क डन निकालना था. VW2 पता है, U2 पता है, G पता है. तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, जो लिखा है क्वेश्चन, VW2 इंटू U2 VW2 G. ये वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं. तो VW2 कितना है हम लोग का 17.215 मल्टीप्लाई U2 कितना आया 25.13 बाई G, एट मीन्स 9.81. अब ये वैल्यू जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा. कितना आंसर आएगा? कैलकुलेटर बताइए. 44.0994. 44.094. वर्क डन इक्वेशन, वर्क डन पर इम्पेलर बाय द इम्पेलर पॉइंट वेट. इसका यूनिट क्या होना चाहिए? 44.08 आ रहा है सर. ठीक है, अप्रॉक्स आ गया ना. ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट कि वाट में होगा.
वॉट में होगा। ओके, सो दैट वाज द स्टेप्स वी हैव टू फॉलो। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? बताइए। हम लोगों को बस क्या करना है कि जो निकालना है ना उसका फॉर्मूला लिख देना पहले, ठीक है। इससे क्या 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 मिसिंग है उसको ध्यान में रख के फिर हम लोग जो ट्राइंगल बना हुआ है, इनलेट ट्राइंगल और आउटलेट ट्राइंगल, उसको बस देखेंगे। वहां से हम लोग को कुछ ना कुछ रास्ता मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ आ गया? So before going to that question, I am going to take the screenshot first. Otherwise, I will forget print screen. और बताइए आप लोगों का कैसा चल रहा है घर पे? ठीक है सर, लेकिन मन नहीं लग रहा है। मन नहीं लग रहा है ना? मन नहीं लगेगा अभी। यस सर, ऑफलाइन का आदत हो गया है ना, एक क्या महीना सर, मजा भी नहीं आ रहा है इसे पढ़ने में सर। फीलिंग नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं लग रहा है लेक्चर चल रहा है, सुन रहे हैं बस। मुझे ये पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ऐसे क्या हो रहा है कि मैं इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ और सही ढंग से बता नहीं पा रहा हूँ। मुझे खुद से फील हो रहा है, ठीक है। जैसे मुझे बताना चाहिए क्योंकि मुझे तो लिखने में बनने आप कॉलेज में हैं, सर? नहीं, यहाँ ऑनलाइन में, ऑनलाइन में। नहीं मतलब सर, कॉलेज में है कॉपी कि भी घर पे? बताइए तो ज्यादा अच्छा समझ। कॉलेज में ठीक थे हम लोग। एक्चुअली हो क्या रहा है, मेरे पास पैड नहीं है ना। वो पैड होता ना तो मैं लिख लिख के बताता तो अपने हाथ से तो ज्यादा अच्छा लगता। तो फिर मुझे कॉपी में बता दीजिए। उसका ये रिकॉर्डिंग मुझे करना है ना जी। कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? यहाँ कॉलेज को, रिकॉर्डिंग हो जाएगा। कॉलेज को रिकॉर्डिंग देना है, पैसा नहीं मिलेगा फिर हमको। बात नहीं समझ रहे हो? ये फिर हो जाएगा रिकॉर्डिंग। कैसे करेंगे? कुछ रास्ता बताओ फिर। हो जाता है सर, एक दो टीचर उसी फिर तरह बैक करते हैं कैमरा ऑन करके हाँ, तो मतलब आप बोर्ड लोग या को फिर मेरा कॉपी कॉपी में। कैसे दिखेगा ये बताइए। सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिएगा। नहीं समझ रहा मैं। जैसे मैं कॉपी पे लिखूंगा ना तो उसको कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? ऊपर से आप कैसे देखोगे? मतलब मोबाइल को हाथ में लेके दिखाना पड़ेगा फिर? ये हो सकता है। सर अभी ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर, हाँ, अभी ये स्क्रीन चीज रखिए। रिकॉर्ड कर रहे हैं ना सर, वही कैमरा ऑन करके आप कॉपी में लिख के दिखाएंगे तो वो रिकॉर्ड होगा। मतलब मेरे को मोबाइल कैसे बोल रहा है सर? ऊपर रखना पड़ेगा, मोबाइल को ना, कैमरा को ऊपर रखना होगा मोबाइल को, यही ना? हाँ वो दिक्कत। उसमें दिक्कत होगा तो उसमें सिंक होता है ना। मान लो कि अच्छा मोबाइल नहीं है तो फिर, या इंटरनेट बढ़िया नहीं है ना, तो वो उसका एफपीएस जो है ना, फ्रेम पास आईफोन है। फ्रेम जो है ना, ये हो। आपका तो आएगा सर, आपको दिक्कत कहाँ होगा। आईफोन में तो सही बात है, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसका इंटरनेट तो चाहिए ना, बढ़िया वाला, है कि नहीं? वो 60 एफपीएस देगा मुझे। ठीक है, कोशिश करते हैं ना। अभी आप कहाँ हैं सर? मैं देखता हूँ उसका कुछ अल्टरनेट उपाय निकालने की कोशिश अभी करता दुमका में हो सर? हूँ। नहीं, दुमका में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। दुमका में मैं नहीं हूँ, मैं पटना घर आ गया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाइए आप लोग। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। शेयर स्क्रीन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को लिखिए और मुझे लगता है कि आप लोग बना सकते हैं। बना के बताइए। इसमें वेलोसिटी ट्रायंगल आई थिंक लगता है बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को इसमें क्या निकालना है? डिटरमाइन द डिस्चार्ज ऑफ द पंप इफ मैथमेटिक वेजेंसी 95%। डिस्चार्ज निकालना है हम लोग को, ठीक है। पंप का डिस्चार्ज मतलब आउटलेट पे कितना डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब पाई D2V2 इंटू VF2 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को नेट हेड दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, n दिया हुआ है। द वेन्स आर कर्व बैक टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द पेरिफेरी, दैट मींस आपका फाई दिया हुआ है, ठीक है, आउटलेट का जो एंगल है। फिर इम्पेलर का डायमीटर दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है पहले से ही।
आउटलेट पे विड्थ दिया हुआ है, तो हमको डिस्चार्ज निकालना है। ओके, इसको ट्राई कीजिए क्वेश्चन आने का जल्दी से। मैं 2 मिनट 5 मिनट टाइम देता हूँ। क्या किसी से बन पाया क्या? क्लियर हो जाते हैं। पहले क्या क्या दिया उसको लिखिए, ठीक है। सर गिवन से सर टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, मैं एक मिनट आ जाओ। बता रहा हूँ क्या क्या दिया, पहले उसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। गिवन हम लोग का दिया हुआ है, पहले नेट हेड दिया हुआ है ना, मतलब कैपिटल एज इज इक्वल टू दिया हुआ है 14.5 मीटर। ओके, फिर दिया हुआ है हम लोग का एन दिया हुआ है 1000 आरपीएम। फिर क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर दिया हुआ हम लोग को डायमीटर दिया हुआ है D2 दिया हुआ है, इम्पेलर डायमीटर D2 इज इक्वल टू 300 mm। फिर दिया हुआ विड्थ दिया हुआ है आउटलेट का B2 दिया हुआ है 50 mm। फिर उसके बाद मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिया हुआ है, ठीक है, एन मैक्स दिया हुआ है, यही मैक्सिमम है 95%। हम लोग को निकालना है डिस्चार्ज, मतलब कैपिटल क्यू, ठीक है। ये इसका है, मान लीजिए कि आपका हैशटैग है पाई, ठीक है। फॉर्मूला होता है पाई D2 B2 एंड VF2। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हम लोग के पास VF2 नहीं है, तो पहले हम लोग को VF2 निकालना पड़ेगा। तो VF2 कैसे निकलेगा, फिर से हम लोग जाएंगे आउटलेट का ट्राइंगल, देखिए फिर ऊपर में, वहां पे हम लोग कर सकते हैं ना। tan फाई इज इक्वल टू, मतलब tan कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, फिर से वो चीज करेंगे हम लोग
VF2 बाई U2 माइनस VW2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को U2 मिसिंग है और VW2 भी मिसिंग है। तो पहले हम लोग U2 निकाल लेंगे। तो U2 कैसे निकालेंगे? उस फॉर्मूला से पाई d2n/60 से निकालेंगे। पाई का वैल्यू होता है 3.14 मल्टीप्लाई d2 कितना दिया हुआ है 300 mm, दैट मीन्स 0.3 मीटर, मल्टीप्लाई n दिया हुआ है हम लोग का 1000/60। तो हम लोग का U2 कितना निकल के आएगा बताइए, कितना आएगा U2 बताइए। इसको मल्टीप्लाई करके बताइए। सर 15.707 मीटर पर सेकंड 15.707 मीटर पर सेकंड, वेरी मीटर पर सेकंड। गुड। तो U2 निकल गया हम लोग का, लेकिन अभी हम लोग के पास VW2 नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी दिया हुआ उसकी ये मैथमेटिक एफिशिएंसी दिया हुआ है, मैथमेटिक एफिशिएंसी है वो, ठीक है। मैथमेटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है G/H/VW2 इंटू U2 होता है, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.95 इज इक्वल टू, हम लोग को G पता है 9.81 मल्टीप्लाई H पता है हम लोग को 14.5, VW2 नहीं पता है, मल्टीप्लाई U2 पता है हम लोग को 15.707। अब यहाँ से मुझे बताइए व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ VW2, कितना आएगा? सर 9.537 आ रहा 9.537 37 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डाल देंगे। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 था ये, इक्वेशन नंबर 1 था ये, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट अब हम लोग इसको लिखते हैं tan 30 इज इक्वल टू VF2 तो पता नहीं है, फिर से लिख देते हैं VF2 बाई, अब हम लोग को U2 पता है 15.707 माइनस 9.537, ठीक है। अब यहाँ से बताइए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ VF2, बोलिए। VF2 कितना आएगा, कहते यूज कीजिए आप लोग। इसको tan 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको माइनस करके, तो मेरे ख्याल से कितना आना चाहिए, tan 30 मतलब 1.732 होता है क्या? नहीं, 1/1/√3। तो कैल्शियम डालिए, बताइए जल्दी से, टाइम नहीं है अब। 3.556 3.556, 6 नहीं सर 6 3.556 ओके। तो ये आ गया हम लोग का VF2, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है डिस्चार्ज, इसको मान लेते हैं यही इक्वेशन यूज करना है ना, अब यहीं पुट कर देते हैं। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई D2 दिया हुआ है 0.3 मल्टीप्लाई B2 दिया हुआ है 0.05 मल्टीप्लाई VF2 3.556। तो बताइए अब कितना आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके बताइए।
मैं ही करता हूँ। सर 0.1674 0.1674 ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हम लोग का आंसर, ठीक है। तो सिंपली करना क्या हम लोग को बस फॉर्मूला याद रखना है और क्या क्या दिया उसको लिखिए, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख दीजिए, जो जो मिसिंग टर्म है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप निकालते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है मेरे ख्याल से सेंट्रीफ्यूगल पंप खत्म होता है और हम लोग अगले क्लास में रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टार्ट करेंगे। उसमें शायद 2 टाइप का होता है, सिंगल टाइप और डबल सिलेंडर टाइप होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ओके। और तब तक के लिए कुछ न्यूमेरिकल इसी टाइप का है। सब इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आप देख रहे हैं ना, हम लोग टरबाइन से स्टार्ट किए हैं, नहीं हम लोग पहले स्टार्ट किए इम्पैक्ट ऑफ जेट से, तो बेसिक चीज था इम्पैक्ट ऑफ जेट को देखिए उसी टाइप का था, इम्पैक्ट ऑफ जेट पे सब आधारित है। तो टरबाइन भी बना है क्वेश्चन, टरबाइन का बढ़िया से, सबका क्वेश्चन उसी टाइप का है, ठीक है। बस वेलोसिटी ट्रायंगल को याद रखना है कि कैसे बनाते हैं, अगर पंप के केस में बनाना होता तो कैसा बनेगा और टरबाइन के केस में बनेगा तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन से भी बन जाएंगे फॉर्मूला की मदद से, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और बढ़िया से रहिए आप लोग, स्टे सेफ स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।